আর মাত্র 2 মিটার, তারপরেই পৌঁছে যাওয়া যাবে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে, এমনই আশ্বাস জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের। জোরদার কাজ চালাচ্ছেন র্যাট মাইনাসরা। উল্টো দিক থেকে শ্রমিকদের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে, ফলে আজই শ্রমিকদের উদ্ধারের সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত জোরদার হয়ে রয়েছে। আর বাইরে অপেক্ষায় 41টি অ্যাম্বুলেন্স, টানেলের মুখে মেডিকেল টিম, এনডিআরএফ অপেক্ষায় বায়ুসেনা, চিনুকও। উদ্ধারকারী দল আশাবাদী আর কোনো বিপত্তি আসবে না। ঘটনাস্থলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী VK সিং, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। বাইরে অধীর অপেক্ষায় শ্রমিক পরিবার, অপেক্ষায় বাংলার 3 পরিবারেও 17 দিন আটকে থাকা শ্রমিকদের খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে এখন সময়ের অপেক্ষা। আশ্বাস প্রশাসনের। আর মাত্র 2 মিটার, তারপরেই পৌঁছে যাওয়া যাবে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে, এমনই আশ্বাস জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে। জোরদার কাজ চালাচ্ছেন র্যাট মাইনাসরা। উল্টো দিক থেকে শ্রমিকদের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে, ফলে আজই শ্রমিকদের উদ্ধারের সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত জোরদার। বাইরে অপেক্ষায় 41টি অ্যাম্বুলেন্স, টানেলের মুখে মেডিকেল টিম, এনডিআরএফ অপেক্ষায় বায়ুসেনা, চিনুকও। উদ্ধারকারী দল আশাবাদী আর কোনো বিপত্তি আসবে না। ঘটনাস্থলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী VK সিং, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। বাইরে অধীর অপেক্ষায় শ্রমিক পরিবার, অপেক্ষায় বাংলার 3 পরিবারও 17 দিন আটকে থাকা শ্রমিকদের খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে এখন সময়ের অপেক্ষা, এমনই আশ্বাস প্রশাসনে। বিক্রম দাস আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিক্রম, কি অবস্থা ওখানে? একেবারে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। তোমাকে যেটা জানিয়ে রাখবো, যেটা ইতিমধ্যেই অফিসিয়ালদের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, 58 মিটার অব্দি এই মাইক্রো টানেলের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এনডিআরএফ এর যারা জওয়ান তারা ইতিমধ্যেই টানেলে প্রবেশ করেছে। 41টি মূলত অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স রেডি করে রাখা রয়েছে। হেলিপ্যাডে এয়ারলিফটেরও ব্যবস্থা রেডি করে রাখা হয়েছে। যেটা বলা হচ্ছে যে এই 41 জন শ্রমিক যারা যেখানে আটকে রয়েছেন, সেখান থেকে মাত্র 2 মিটারের ব্যবধান রয়েছে এবং সেখানে বেশ কিছু পাইপের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ওয়েল্ডিং এর কাজ চলছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই পাইপটিকে মসৃণ করার কাজ চলছে, যাতে একেবারে সুষ্ঠুভাবে এই 41 জনকে একে একে হুইল স্ট্রেচারে করে এই 800 মিলিমিটারের পাইপের মধ্যে দিয়ে বের করে আনা যায়। যেটা সব থেকে বড় সাফল্যতা হলো যে যেই 6 থেকে 9 মিটার সব থেকে বড় মেটালিক অবস্ট্রাকশনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে অগার মেশিন পর্যন্ত আটকে গিয়েছিল এবং যেই 6 থেকে 9 মিটার আটকানোর জন্যই বিকল্প একাধিক রাস্তা কিন্তু দেখতে শুরু করেছিলেন উদ্ধারকারীরা। কিন্তু সেই 6 থেকে 9 মিটার অবস্ট্রাকশন তা সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং মাত্র 1 থেকে 2 মিটার কিন্তু ডেব্রেস বাকি রয়েছে, সেটাও কিন্তু দ্রুত সরিয়ে ফেললেই কার্যত এই 41 জনকে প্রত্যেককেই বের করে আনা সম্ভব হবে। 41 জন প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছে এবং পোস্ট রেস্কিউ অপারেশনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রিপারেশন নিয়ে রাখা হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে। যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেরকম এই অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে 30 কিলোমিটার দূরে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে, যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানেও কিন্তু ইতিমধ্যেই অ্যালার্ট করা হয়েছে। 30 কিলোমিটার রাস্তা পুরোপুরি গ্রিন করিডর থাকবে এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর যদি কাউকে মনে হয় যে আরো উন্নতর ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে কিন্তু তাদেরকে এয়ারলিফট করাও যাবে। বিক্রম, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। আমাদের অপর প্রতিনিধি রামানুজ ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি তুলে ধরছে তথ্য। 1 बजे कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये कहा था कि वो जो पैच है वो 7 से 8 मीटर के बीच में जो बाकी रह गया था, और टोटल अगर उसको देखें तो जो पाइप गई थी वो 52 मीटर की थी। तो इस तरह से अधिकारियों ने भी माना कि जो ब्रेक थ्रो मिलना है वो 57 मीटर पे भी हो सकता है और वो 60 मीटर पे भी हो सकता है। उसमें मतलब 2 से 3 मीटर का अगर पैच को देखें तो ज़्यादा एनालिसिस नहीं हो पाई थी, तो इसलिए थोड़ा जो वक्त भी लगा उसमें भी लगा। ये भी कहा गया कि जो पाइप ऑलरेडी उसमें जा रही थी ड्रिल करके, उसका अगला वाला पार्ट जो था वो मुड़ भी गया था, यानी कि अगर उससे ट्रॉली को सेट करके लाया जाता तो किसी तरह से कोई खरोच ना आए। उसमें कुछ चूंकि जो लोहे की सरिया थी उससे पाइप को, उसके अगले पार्ट को नुकसान पहुंचा था, उसको काट करके सही करना। और चूंकि सिर्फ इतना नहीं कि पाइप को अगर मजदूरों के पोर्शन पर पहुंच गई है उस टारगेट एरिया पर जहां पाइप को पहुंचाना है, बल्कि ये भी देखना है कि बड़े महफूज तरीके से सभी 41 मजदूरों को भी लाना है। और उनको सिर्फ लाने का यही नहीं है कि पाइप चली गई तो वो चले आएंगे, बल्कि उनको लाने का काम किया जाए। यही वजह है कि इसको रेस्क्यू इसीलिए कहा जा रहा है कि एक एक करके सभी मजदूर बाहर लाए जाएंगे और लाने का काम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान करेंगे। वो उनके बैकअप के लिए जी मीडिया ने लगातार ये बताया था कि जो एक जवान जाते हैं उनके बैकअप में दूसरे, उसके बैकअप में तीसरे जवान रहते, जैसे कि उनको ऑक्सीजन
विजन का या फिर उनको लाइट या और जो उनके वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं उन सबको देखते हुए, ट्रैक करते हुए कि कहीं अगर मान लीजिए किसी एक जवान को कोई दिक्कत भी किसी तरह की चैलेंज फेस करने का आ जाए तो सेकंड बैकअप के जरिए उसको उसकी कामयाबी हासिल कर लें। तो और इसके बाद थर्ड, तो इस तरह से वो जाने का भी है। और जो लगातार सवाल आ रहा था कि कितना टाइम लगता है, 41 मजदूर हैं, मिसाल के तौर पर अगर 4 ही मजदूर उनके साथ में जवान भी चले गए तो उनका भी टाइम उसी में जुड़ेगा। तो एक मजदूर पर 3 से 4 मिनट 5 मिनट का जो टाइम लगेगा ये एस्टिमेटेड टाइम था कि इतना लग सकता है। लेकिन किसकी सेहत कैसी है, कौन किस तरह से उसमें एडजस्ट होगा और किस स्पीड से उस ट्रॉली को लाया जाएगा, ये इसके एक पार्ट है। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीर भी दिखाएं, चूँकि जो तस्वीर है वो कहते भी हैं कि हज़ारों शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर आप इस टनल के बाहर भी देखेंगे, अभी भी यहाँ पे अलाव जला दिया गया। कुछ यहाँ पे जो वर्कर्स भी हैं, जो सेना के जवान हैं या दूसरे, वो वहाँ पर पहुँच रहे। चूँकि ठंड शुरू हो गई तो बाहर एक तरह चैलेंज है, मौसम थोड़ा सा बदला है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। परिजन भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जो इसमें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात और 17 दिनों से एक करके बैठे हैं, उसमें जवान, वर्कर्स, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और ऑपरेटर्स, ये सब के सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी। थोड़ी तस्वीर साफ हो रही है। अब आपको टनल के ठीक पार्ट नंबर 1 पर ले चलते हैं, यानी जैसे एंट्री मारते हैं यहाँ भी देखेंगे एक बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो वीआईपी वीवीआईपी आते हैं वो जब अंदर जा रहे हैं तो उनको वो कैप पहनाई जाती है सेफ्टी की। इसके बाद जाते हैं आगे, जैसे जाएंगे वाइट कलर का एक आपको यहाँ पर एक पर्दा दिखेगा। वो पर्दा तो नहीं है एक्चुअली, बल्कि वहाँ एक हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया गया है। और वो छोटा सा हॉस्पिटल, मेडिकल चेक पोस्ट जिसे कहें, मेडिकल का पोस्ट है वो है। जैसे वो आएंगे उनको वहाँ पर तुरंत फर्स्ट एड की मेडिसिन या फिर इंजेक्शन और कोई भी दवा, उनकी ऑक्सीजन, वो सारे लेवल को चेकअप किया जाएगा। तो देर का दर्शक यही सोच रहे होंगे कि इतना वक्त कैसे लग रहा है, लेकिन इसके आगे भी चलिए। इस चेक पोस्ट यानी मेडिकल पोस्ट के आगे जो हॉस्पिटल बना है, अगर आप जाएंगे फिर पैच आता है, वो तकरीबन वो 150 मीटर का पैच है। आपको वो नज़र भी आएगा अगर आप कैमरा वहाँ तक जूम हो रहा है तो वो जो 150 मीटर का पैच है उसके आगे जब जाते हैं वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। वो तकरीबन 200 मीटर की दूरी है। और वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी और केंद्र मंत्री बीके सिंह भी हैं। और ये पहली बार ऐसा भी होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री टनल में इतनी देर तक यानी कि बैठे भी हों। ये काफ़ी टाइम होगा, तकरीबन 2 घंटे के आसपास का टाइम गुजर रहा है। तो एक एक पल की सरकार भी जानकारी ले रही है और सरकार ये भी देख रही है कि आगे क्या स्टेप उठाया जा सकता है। तो हर एंगल से काम किया जा रहा है। जी, বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।